Yes. Good afternoon, boys and girls. Good afternoon, boys and girls. I welcome you all to yet another lecture of CA Foundation Economics. So, आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारी जो चर्चा का सत्र है वो आगे बढ़ाते हैं. Whatever discussions we had in the last lecture, let's take our discussion further ahead in the chapter. जहाँ पर हमने चैप्टर शुरू किया है द थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में हम हमारा पहला पार्ट थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं, जहां पर थ्योरी ऑफ डिमांड के अंदर हम अभी जो पार्ट देख रहे हैं दैट इज द डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड पार्ट. कल के लेक्चर में लास्ट में एंड में हमने पहला लॉ सीखा इकोनॉमिक्स में जो था लॉ ऑफ डिमांड. द लॉ ऑफ डिमांड इज प्रोपाउंडेड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल. द लॉ ऑफ डिमांड इज प्रोपाउंडेड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल. He is the person who gave the law of demand. What did he say in his particular law? Ceteris paribus, other things remaining same and constant. As the price of the product increases, demand for the product decreases. As the price of the product decreases, demand for the product increases. So, as per the law of demand, he tends to set up the relationship between two products, that is price of the commodity and its quantity demanded. We have rightly seen, as the price increases, demand decreases. As the price decreases, demand increases. Hence, we conclude that there is an inverse relationship between price of the commodity and its quantity demanded. Then we saw a schedule based on the particular law, where we saw as the prices decreased from 5 to 1, the quantity demanded increased from 10 to 30. Yes or no? Agree? Hi, na? Then based on the schedule, we drew a graph where we drew the demand curve, DD curve, which is downward sloping from left to right. As per the law of demand, when we made the schedule and we prepared the graph, we found out the demand curve which is downward sloping from left to right. This negative slope of the demand curve is due to the inverse relationship between price of the commodity and its quantity demanded. I told you the thumb rule that if there is negative relationship between two variables, the slope, the curve which we will draw will always be downward sloping or having a negative slope. Whenever there is direct positive relationship, the slope will always be upward sloping and it will have direct positive slope. It will have positive slope. It will be always upward sloping from left to right. As there is inverse relationship between price of the commodity and its quantity demanded, the demand curve is downward sloping from left to right. So this is all we have learned in the law of demand. तो जैसे मैंने कल बताया था, किसी भी लॉ को इकोनॉमिक्स में अगर पढ़ना है तो तीन चीजों को पढ़ना पड़ेगा. फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, then we'll understand a schedule which is based on the statement, and after that we'll draw a diagram which is based on the schedule, which will show us the curve of that particular two variables which are under consideration. Are we okay? Does anyone have any sort of doubt in yesterday's lecture? Yes, any doubt? कोई doubt? Yes, किसी कोई doubt है? नहीं. चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट पार्ट की तरफ. आज के लेक्चर में पहले हम देखने वाले हैं व्हाट आर द रैशनल्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. रैशनल्स का मतलब होता है यहाँ पर रीजन. व्हाट डू मीन बाय द वर्ड रैशनल? रैशनल मीन्स रीजंस. रैशनल का मतलब है रीजंस, द रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. बिफोर वी मूव ऑन टू द रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, हमारे स्टूडेंट ने मॉड्यूल पूरा पढ़ा है. पढ़ते हुए उन्होंने देखा कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में अदर फैक्टर्स में क्लाइमेटिक कंडीशंस इज आल्सो वन ऑफ द कंसिडरेशंस. यस, नो डाउट दैट क्लाइमेटिक कंडीशंस has a consideration or also determine the demand. For example, let's for example say we live in Manali, but obviously we'll have cold kind of temperature throughout the year. वहाँ पे ठंड पूरे सालाना रहेगी, एवरेज टेम्परेचर 20 से ज्यादा पूरे साल में नहीं होता, बरोबर. तो वहाँ पे विंटर क्लोथ्स की डिमांड कभी भी हमारे लोकल परभनी की डिमांड से ज्यादा रहेगी, और हमारे परभनी में विंटर में भी गर्मी होने लगती है ना. तो हमारे यहाँ पे विंटर क्लोथ्स की उतनी डिमांड रहेगी क्या? नहीं. तो जहां पर ठंड है क्लाइमेट कंडीशंस के हिसाब से, जैसे और एक एग्जांपल अगर लेना है तो चेरापूंजी है. चेरापूंजी एक ऐसा रीजन है जहां पे सबसे ज्यादा बरसात होती है. हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इज रिकॉर्डेड इन इंडिया इन चेरापूंजी. तो वहां पे बरसात सबसे ज्यादा चलती है, तो वहां पे क्या चलेगा? रेनकोट अम्ब्रेला ज्यादा चलेंगे. हमारे यहाँ चलेगा क्या उतना? नहीं, कि हमारे यहाँ बरसात का औसत या एवरेज उतना ज्यादा नहीं है. तो जिस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन, उस तरह के कपड़े और उस तरह की डिमांड वहां पे रहेगी. राजस्थान जैसे जगह पे जहाँ पे गर्मी ज्यादा रहती है अक्सर, वहाँ पे आइसक्रीम्स ज्यादा चलेंगे. स्वेटर चलेंगे क्या वहाँ पे? नहीं चलेंगे, क्योंकि स्वेटर ठंड जहाँ पर होती है वहां पर ज्यादा चलेंगे. ठंडी के दिनों में स्वेटर चलना अलग बात है, लेकिन पूरे 12 महीने स्वेटर, जैसे अब आप यूरोप जाते हो, लंदन जाते हो, वहां पे
जो एवरेज टेम्परेचर है वो लो है हमेशा, तो कंपेरेटिवली वहां पे 12 महीने लोग जो है वुलन क्लोथ्स या विंटर क्लोथ्स इस्तेमाल करते हैं। हम 12 महीने इस्तेमाल करते हैं क्या? नहीं, मुश्किल से परवनी में हम एक आध महीना विंटर क्लोथ्स निकालते हैं, उसे यूज करते हैं। आई यू गेटिंग माय पॉइंट? सो द क्लाइमेटिक कंडीशंस आल्सो डिटरमाइन द डिमांड। यस, एनी अदर पॉइंट रिमेनिंग और टू बी आस्क्ड? हो गया सब ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, रैशनल्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड और व्हाई द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस एंड व्हाट आर द डिफरेंट पॉइंट्स? तो एक एक करके हर एक रीजन को समझते हैं। सबसे पहले है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये एक और लॉ है जो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है, जिसे हम थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। कौन से चैप्टर में पढ़ने वाले हैं? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर जो चैप्टर है, उस थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर के अंदर ये वाला पार्ट हमें पढ़ना है, राइट? तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को तब हम काफी डिटेल में देखेंगे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस डिमांड चैप्टर इज थर्ड चैप्टर नो, और इज इट सेकंड? सेकंड, ओके। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है क्या इसमें? एक मिनट, मॉड्यूल देना, शायद इसी के अंदर है कवर्ड, सेकंड चैप्टर में। यस, मेंटेन साइलेंस। यस, इसी चैप्टर नंबर 2 में यूनिट नंबर 2 थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है। तो मैंने आपको कितना बताया था वेटेज बोर्ड का? 42 ना? प्लीज लेट मी करेक्ट इट। चैप्टर नंबर 3 कवर्स 55 मार्क्स ऑफ योर 12th स्टैंडर्ड बोर्ड, 55 मार्क्स। तो अब इस चैप्टर के बाद 55 मार्क्स बोर्ड के कंप्लीट कर रहे हो, क्योंकि इसके बाद यूनिट नंबर 2 है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उसके 12 मार्क का अलग चैप्टर है 12th स्टैंडर्ड में, कंज्यूमर बिहेवियर। तो 42 प्लस 12 कितना हुआ? 54। एक सिंगल चैप्टर और आपके बोर्ड के 600 में से 54 मार्क्स रेडी। और जो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में यूनिट 2 में मैं पढ़ाने वाला हूं, उसका हार्डली आपको बोर्ड में 30% ही है। तो इस तरह से आपको जो है फाउंडेशन वालों को एक एज मिलेगा, प्रोवाइडेड यू आर रेगुलर टू द क्लास। अगर आप क्लास को रेगुलर हो, लेक्चर ठीक से कर रहे हो, राइटिंग ठीक से कर रहे हो, पढ़ाई ठीक से कर रहे हो, तो बाय द टाइम लोग 12th की शुरुआत करोगे, यू विल बी ऑलरेडी रेडी विद 200 मार्क्स अराउंड। 100, 150, 200 मार्क्स के साथ आप ऑलरेडी रेडी रहोगे। तो ये वाला चैप्टर 54 मार्क्स के लिए, आपको 55 मार्क्स के लिए 12th में आता है। दैट इज द रीजन आई ट्राई टू एम्फसाइज मोर ऑन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, मोर ऑन इकोनॉमिक स्टार्टिंग इन द फाउंडेशन अदर देन लॉ। तो उस चैप्टर में ये वाला जो पॉइंट है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये लॉ अपने को वहां पे डिटेल में देखना है। अभी यहां पे मैंने डिटेल में नोट्स दी है, लेकिन अभी पिछली बार जब मैं बैचेस को पढ़ा रहा था तो वो पूरा लॉ यहाँ पढ़ा लेता था, लेकिन अब मैं पिछले बैच से थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहा हूँ। ऑलरेडी अपने को नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है, तो अभी यहाँ पर डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे। तो ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट का राइटिंग वर्क जो है एज इट इज कर लो। मैं आपको सिर्फ थोड़ी थोड़ी लाइट इसकी जानकारी देता हूँ। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज ऑल्सो गिवन बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। सो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में ये कहते हैं, with the consumption of every additional unit of a commodity, the utility one derives from the consumption keeps on diminishing. Diminishing का मतलब क्या है? Decreasing. What do you mean by word diminishing? Decreasing. The law of diminishing marginal utility. The law of decreasing marginal utility. एक एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन से कितना एडिशनल यूटिलिटी अपने को मिलता है, वो बताता है हमें मार्जिनल। बदलते यूनिट के साथ बदलती कितनी अपने को यूटिलिटी मिलती है, वो हमें मार्जिनल बताता है। तो सिंपल पहले आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आपको अगर अच्छे से समझता है तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में भी आता है तो अभी इतना ज्यादा टेंशन मत लेना, क्योंकि इसको मैं बाद में नेक्स्ट जब हम यूनिट पढ़ेंगे उसके अंदर हम डिटेल में देखने वाले हैं। अभी ओके एंड फाइन? चलिए समझने की कोशिश करिए। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि हम किसी भी कमोडिटी को कंटिन्यूअस अगर एक के बाद एक कंज्यूम करते गए, तो उसके अंदर से जो यूटिलिटी हमें मिलती है वो डिमिनिश होते जाती है, डिक्रीज होते जाती है। डिमिनिश और डिक्रीज। अब यूटिलिटी का मतलब क्या है?
the want satisfying power of a commodity is called as utility. What do you mean by utility? Want satisfying power. What did I say? The want satisfying power of a commodity is called as utility. पानी क्या बुझाता है हमारा? प्यास. पानी क्या बुझाता है हमारी? प्यास. So water has utility of thirst, right? Pen has utility of writing. Yes or no? Projector has utility of projection. Fan has a utility of providing air. The CFL has a utility of providing light. So whatever want that commodity satisfies is the utility which we get from the consumption of a commodity. खाने से क्या मिटती है? भूख. So food has utility of hunger. Are you getting my point? Right? Are you getting my point? Utility का मतलब क्या है? Want satisfying power of a commodity. Want satisfying power of a commodity is called as utility. और इस यूटिलिटी के ऊपर एक लॉ बनाया है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसमें यह कहता है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, विद द कंजम्पशन ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी द यूटिलिटी वन डिराइव्स कीप्स ऑन डिमिनिशिंग और डिक्रीजिंग. और इसके हिसाब से जब हम मार्जिनल यूटिलिटी की कर्व बनाने की कोशिश करेंगे, सो दैट मार्जिनल यूटिलिटी कर्व विल आल्सो बी डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. क्योंकि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है, it is also considered as one of the reasons while contributing to the negative slope of the demand curve. अब हर एक इंस्टेंस में हमें यह देखना है कि किस तरह से नेगेटिव स्लोप आएगा और वो नेगेटिव स्लोप किस तरह से डिमांड कर्व के नेगेटिव स्लोप के साथ कोरिलेट करता है. अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का नीचे अगर आप डायग्राम देखोगे आगे, तो इसके अंदर ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम है. हाउ इज द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व? इट इज ऑल्सो डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइक द डिमांड कर्व. यस और नो? So this also contributes to the reasons why the demand curve is downward sloping from left to right. Why so? Understand. The law of diminishing marginal utility says that with the consumption of every additional unit of a commodity, the additional utility one derives keeps on diminishing. इसका मतलब समझने की कोशिश करो. हमारे प्यारे प्रथमेश को फ्रूटी बहुत पसंद है. You know फ्रूटी 250 ml टेट्रा पैक, राइट? वो जो कागज की पैकिंग आती है उसे टेट्रा पैकिंग कहते हैं. क्या कहते हैं उसे? टेट्रा पैकिंग, राइट? तो ये चीजें भी बेसिक चीजें मालूम होनी चाहिए. उस तरह की पैकिंग को हम क्या कहते हैं? टेट्रा पैक. अब वो 250 ml का टेट्रा पैक अभी सुबह से बेचारा लेक्चर में बैठा है और मैंने पूरी की पूरी कैरेट यहां लाकर रख दी. एक कैरेट में 24 पीसेस है, 24 पीसेस. नाउ अब सुबह से वो प्यासा है, सुबह से गर्मी में बैठा है, सर चुप तान दे रहे इतनी देर से, राइट? एसी भी नहीं लगा रहे, खाली दिखा रहे. तो सर ने एक फ्रूटी ली और प्रथमेश के हाथ में दे दी. प्रथमेश कंज्यूम्ड द फ्रूटी. नो डाउट द सैटिस्फैक्शन ही विल डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ फर्स्ट फ्रूटी विल बी वेरी मच हाई. जो सेटिस्फैक्शन उसको पहली फ्रूटी पीकर मिलेगा वो बहुत ज्यादा हाई रहेगा. हाई है ना? नाउ ही कंप्लीट्स फर्स्ट पैकेट. इमीडिएटली मैं दूसरा पैकेट उसके हाथ में देता हूं, मतलब पियो. तो पहले वाले में जितना सेटिस्फैक्शन मिला था, क्या उतना सेटिस्फैक्शन अब मिलेगा क्या? क्योंकि इंटेंसिटी अब कम होने लगती है. इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करो. ऐसा समझो सब जन फ्रूटी पी रहे, समझ लो, समझ लो. ऐसा समझो सब जन कि हम फ्रूटी पी रहे हैं. एक पैकेट तुमने पी लिया तो सेटिस्फैक्शन मिल गया. मिल गया? मिल गया सबको? हाँ. तो एक फ्रूटी पिया तो सेटिस्फैक्शन मिल गया. अब बात आती है दूसरे पैकेट पीने की. अब दूसरा पैकेट जब टेट्रा पैक वो पिएगा, ऑलरेडी एक पैकेट वो पी चुका है, तो कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन लेवल कम होगा. हाँ या ना? डू यू एग्री? यस और नो? जैसे आप सुबह से भूखे थे, लेक्चर के बाद मैंने कहा टिफिन खा लो, खोलते ही जैसे पहले चपाती पहला निवाला था तो सेटिस्फैक्शन एकदम हाई था. लेकिन एक चपाती जब पेट में चले गई तब सेकंड चपाती में धीरे 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 हाथ चलता है, क्योंकि पेट में जो भूख थी, जो इंटेंसिटी थी वांट की, वो कम होने लगी है. बहुत बहुत डे टू डे चीज है, बहुत साइकोलॉजिकल है, बहुत कॉमन साइकोलॉजी है. सिर्फ आपको सुनना है मैं क्या बोल रहा हूं. पहला टेट्रा पैक पीने के बाद जब दूसरा पैकेट में उसको दूंगा तो उसकी सेटिस्फैक्शन लेवल में कमौती होगी कि नहीं होगी? यस. जितनी सेटिस्फैक्शन उसको पहले फ्रूटी पैकेट पीने से मिला था, उससे थोड़ा कम सेटिस्फैक्शन उसको सेकंड में मिलेगा. हाँ या ना? और फिर उसके बाद मैंने तीसरा उसको पकड़ा दिया. मैंने कहा पियो. अब बोल नहीं सर बस. मैंने कहा पी रे भाई, पी, ऐश कर.
पिलाया। सब 2 फ्रूटी पीने के बाद जब वापस से जब तीसरी फ्रूटी उसे पिलाई जा रही है, डू यू थिंक व्हाट विल हैपन टू द सेटिस्फैक्शन? इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। पहले फ्रूटी पीने में जितना सेटिस्फैक्शन मिला था उससे थोड़ा कम सेकंड में मिलेगा, उससे थोड़ा कम थर्ड में मिलेगा। मैं 4th दे रहा हूं, 5th दे रहा हूं, 6th दे रहा हूं, देते जा रहा हूं। जैसे 5 दिए, छठा दो, बोला हात जोडतो सर, मला अजून पाजू नका, नाही मी इथं टाईट होऊन जातो फ्रुटी मध्ये। प्रत्येक बोला बाल यहाँ तो को सर, यहाँ तक अगर आप और पिलाए तो मैं टाइट हो जाऊंगा। फ्रूटी भी चढ़ने लगी। तो बोलने का उद्देश्य कैसा है, जैसे जैसे वो फ्रूटी का कंजम्पशन बढ़ाता जा रहा है, उस फ्रूटी के कंजम्पशन में से जो यूटिलिटी उसको मिलने वाली है वो कम होती जा रही है। हर एडिशनल कंजम्पशन के साथ जो एडिशनल यूटिलिटी उसे मिलनी थी वो कम होती जा रही है। बाय द टाइम विल गो टू कंप्लीशन ऑफ 5 फ्रूटीज, हिज यूटिलिटी विल कीप ऑन डिमिनिशिंग। और जैसे 6 फ्रूटी की बात आती है वो बोला नको, हात जोडतो, आता माझी कॅपॅसिटी संपली आहे, माय कॅपॅसिटी इज ओवर, ओनली 5 पैकेट्स, आई एम डन। क्योंकि उसको मालूम है छठी फ्रूटी अगर जबरदस्ती भी मैं पिला दिया तो उसको यूटिलिटी 0 मिलने वाली, उसमें से कुछ उसको सेटिस्फैक्शन नहीं। जबरदस्ती की वाली चीज को सेटिस्फैक्शन देती है क्या? नहीं। तो अगर जबरदस्ती मैं उसको छठी फ्रूटी पिला भी दूं, उसमें से यूटिलिटी उसको क्या मिलेगी? 0, क्योंकि ऑलरेडी पेट में 5 फ्रूटी चली गई। कितनी? 5। आई गेटिंग माय पॉइंट? ठीक उसी तरह से समझ लो, आप बहुत प्यासे हो, 3 बजे का लेक्चर छूटा, मैंने स्प्राइट मंगवाई 1 सवा लीटर की बोतल, आई उसको बोला ले बेटा पी ले। तो पहले 2 घूंट पिएगा तब तक ठीक लगेगा, जैसे जैसे एडिशनल वो पीता चला जाएगा, 1 सवा लीटर की बोतल तो अकेले पीने से रहा, जैसे उसको थोड़ा बहुत पी लेगा, मतलब 1 ग्लास इतना समझ लो, 100, 200, 300 ml तक अच्छा लगेगा। उसके बाद अगर वो पीता जाएगा तो उसकी यूटिलिटी कम होती जाती है। ठीक है, इसी तरह से खाने का है। आप सुबह से घर जाके खाना खाने के लिए बैठे हो, सुबह से कुछ नहीं खाया, सर ने बहुत बोर किया, 3 बजे तक बैठा के रखा है। अब जो भूख लगी है, ऐसी इंटेंसिटी, ऐसी आग लगी है, पेट में डायनासोर दौड़ रहे। अब बोले मम्मी को खाना दो, वो जैसी पहली रोटी थाली में आई, कहाँ खत्म हुई, कहाँ गायब हुई, पता ही नहीं चला। तो इसका मतलब क्या है, जितनी इंटेंसिटी ज्यादा थी उतनी यूटिलिटी ज्यादा थी। तो सुबह से भूखे जब आप थे तो पहली चपाती जब आपने कंज्यूम की तो पहले चपाती में यूटिलिटी सबसे ज्यादा मिली। जैसे पेट में 1 चपाती गिरती है तो पेट में थोड़ी सी ठंडक आने लगती है। फिर जैसे आप सेकंड चपाती कंज्यूम करोगे तो पहले में जितनी यूटिलिटी मिली थी उसके कंपेयर में यूटिलिटी कम होनी चाहिए, सेटिस्फैक्शन लेवल अब थोड़ा कम रहेगा दूसरी चपाती में। फिर जैसे 3rd कंज्यूम करोगे, 4th कंज्यूम करोगे, वैसे वैसे सेटिस्फैक्शन आपका कम होता चलेगा। और फिर बाद में जब आप 100% सेटिस्फाइड हो जाते हो तो आप कंजम्पशन करना बंद कर देते हो, क्योंकि आपको मालूम है इसके बाद अगर और कंज्यूम कर लिया जबरदस्ती तो आने का तो छोड़ो, बाहर जाएगा उल्टा यूरिटी, क्योंकि 5 तो ये पी चुका है, यहां तक आ चुका है। जबरदस्ती अगर मैं छठी फ्रूटी पिला दूं, एनर्जी मिलना छोड़ो, अंदर की एनर्जी बाहर चले जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इसी चीज को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में समझाया गया है। द सेम हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो अगर हम फ्रूटी के एग्जांपल को अगर समझे तो कैन आई से विद द कंजम्पशन ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ फ्रूटी द एडिशनल और मार्जिनल यूटिलिटी वन इज डिराइविंग इज कीपिंग ऑन डिमिनिशिंग और डिक्रीजिंग। अग्री? हर एक फ्रूटी के साथ, हर एक फ्रूटी के कंजम्पशन के साथ, जितनी फ्रूटी आप कंजम्पशन कर रहे हो, हर एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन के साथ जो एडिशनल यूटिलिटी आपको मिल रही है वो क्या हो रही है? डिमिनिश हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? डिमिनिश हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अग्री? अग्री एवरीवन? सभी लोग यस और नो? सब लोग अग्री करते हैं मेरी बात से? यस। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से जो मार्जिनल यूटिलिटी कब अब हमें मिलेगी वो किस तरह मिलेगी? वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखो यहां पे, देखो ये पहली फ्रूटी की यूटिलिटी है, ये पहले फ्रूटी की यूटिलिटी है। लेट्स से द यूटिलिटी इज 8। वो यूटिलिटी कितनी है मेरी? 8, हाँ या ना? फिर उसके बाद सेकंड वाली जो फ्रूटी आप कंज्यूम करोगे उस सेकंड वाली फ्रूटी में अब यूटिलिटी कितनी मिल रही है? 6। पहले वाली फ्रूटी में सेटिस्फैक्शन ज्यादा था तो तब कितना यूटिलिटी मिला? 8 का। सेकंड में अब सेटिस्फैक्शन थोड़ा कम हुआ है तो यूटिलिटी कितनी मिली? 6। 6 चल की बाबा
सो इस तरह से अगर हम इस पूरे डायग्राम को ऑब्जर्व करें, सो विल गेट टू नो दैट द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सो सेम विल हैपन विद डिमांड. सो इसे मैं ऐसा कह सकता हूं क्या, द मोर आई डिमांड द लेस विल बी द एडिशनल यूटिलिटी आई डिराइव. मैं जितना ज्यादा, सी प्राइस कम होने की वजह से, प्राइस अगर कम होती है तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी. जैसे प्राइस ऑफ व्हीट हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 5 to 1 and the demand has increased from 10 to 30. The demand has increased from 10 to 30, but what is happening to utility? What is happening to utility? But the utility is decreasing because जैसे जैसे मैं मेरा डिमांड बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे मेरी यूटिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है. इसीलिए अगर आप देखें, अगर आप ऑब्जर्व करें, सो इस डाउनवर्ड स्लोपिंग मार्जिनल यूटिलिटी कर्व की वजह से डिमांड कर्व का भी स्लोप डाउनवर्ड ही होता है. हाउ इज द स्लोप ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी कर्व हियर? हाउ इज द स्लोप ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी कर्व? डाउनवर्ड. हाउ इज इट? डाउनवर्ड. यस और नो? As the slope is downward, as it is downward sloping, the demand curve is also downward sloping with the same reason. क्योंकि जैसे डिमांड बढ़ेगा वैसे यूटिलिटी कम होगी, यूटिलिटी कम हुई तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कर्व भी कैसे होगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग, सेम लाइक द डिमांड का. अग्री? अग्री? यस और नो? सो ये हुआ पहला रैशनल, जहां पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहती है विथ एवरी एडिशनल डिमांड द एडिशनल यूटिलिटी इज डिमिनिशिंग. So marginal utility curve is downward sloping, so it also contributes to the demand curve which is also downward sloping from left to right. Agree? हाँ या ना? हाँ या ना? Yes or no? Yes or no? Yes. तो अब ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से हमारी जो भी ये मार्जिनल यूटिलिटी कर्व थी, ये मार्जिनल यूटिलिटी कर्व कैसी है बच्चों? It is downward sloping from left to right. So it is also one of the reasons why the demand curve is downward sloping. Law of diminishing marginal utility समझ में आया? इसको और डिटेल में हम बाद में जब सेकंड यूनिट पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं. अभी के लिए समझ में आया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है विथ एवरी एडिशनल कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी, विथ एवरी एडिशनल कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी द एडिशनल मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस. जिसके वजह से मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कर्व कैसी है? डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. हाउ इज द मार्जिनल यूटिलिटी? डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. एज द मार्जिनल यूटिलिटी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द डिमांड कर्व विच इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अभी ओके विद द फर्स्ट रैशनल एंड रीजन व्हाई द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. सो रैशनल्स में हमको यही देखना है कि डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप में क्यों होती है, या फिर व्हाई इज द डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. जिसका पहला रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसके हिसाब से मार्जिनल यूटिलिटी कर्व कैसी है? डाउनवर्ड स्लोपिंग और हैज अ नेगेटिव स्लोप. एज द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व हैज अ नेगेटिव स्लोप, इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द नेगेटिव स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व. अभी ओके? क्योंकि एज द प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस एंड विद द इंक्रीज इन डिमांड यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग. एज यू डिमांड मोर एंड मोर ऑफ अ कमोडिटी, द यूटिलिटी यू डिराइव विल कीप ऑन डिमिनिशिंग. अभी ओके विद द फर्स्ट रैशनल? एवरीवन? यस और नो? राइट. चलिए दूसरा आता है प्राइस इफेक्ट. सेकंड है प्राइस इफेक्ट. पानी से बोतल बेटा बेटा दे. तुम क्या करो बेटा, पानी है ना उसमें? ठीक है. सेकंड है प्राइस इफेक्ट. पानी ला ले इसमें, देख के जाना है कैमरे को. हाँ चलिए, प्राइस इफेक्ट अगला पॉइंट है. नाउ व्हाट वी हैव इन द प्राइस इफेक्ट? एज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डिक्रीजेस, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इंक्रीजेस. एज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डिक्रीजेस, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा. Hence there is an inverse relationship between price of the product and its quantity demanded. Hence there is inverse relationship between price of the product and its quantity demanded. Due to this inverse relationship between price and quantity demanded, but obviously the demand curve has to be downward sloping from left to right. So इसमें कुछ नया नहीं है, इसमें सिर्फ यही बोला जा रहा है.
वाइस वर्सा म्हणजे त्याचा अपोजिट. यहाँ पे क्या दिया है, एज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डिक्रीजेस डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इनक्रीजेस. वाइस वर्सा म्हणजे त्याचा उलटा, एज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इनक्रीजेस डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इनक्रीजेस. म्हणजे पुढे डबल लिहायची गरज ना, त्याच्या ठिकाणी काय लिहून टाकला आपण, वाइस वर्सा. म्हणजे जो दिया है उसका उल्टा भी, उसका कंसिडरेशन. एंड वाइस वर्सा मतलब जो है दिया उसका उल्टा. अभी क्या दिया है अपने को, when the price of the product decreases demand for the product increases. and vice versa का मतलब क्या है, when the price of the product increases demand for the product will increase. so due to price effect there is inverse relationship between price and quantity demanded. as the price is increasing the demand is decreasing, as the price is decreasing demand is increasing. hence price and quantity demanded are moving in opposite direction, inverse direction. so the how will be the slope then, slope will be downward sloping, it will have a negative slope. क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, नेगेटिव, इनवर्स. एज देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप द स्लोप हैज टू बी इनवर्स, अगेन इट विल कंट्रीब्यूट टू द नेगेटिव स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व. अभी क्लियर. तो यहाँ पे अगर हम प्राइस का अगर देखें कि भाई जब प्राइस 10 था डिमांड था 5, जब प्राइस 5 हो चुका है डिमांड हैज इंक्रीज टू 10. यस और नो. अभी ये नीचे है क्वांटिटी, ये ऊपर है प्राइस. जब प्राइस 10 था क्वांटिटी थी 5, जब प्राइस 10 था क्वांटिटी डिमांडेड वाज 5. व्हेन प्राइस रिड्यूस्ड टू 5 क्वांटिटी डिमांडेड बिकेम 10. नाउ ड्यू टू दिस प्राइस इफेक्ट with the quantity demanded, the slope which we have is a negative slope. hence this also contributes to the demand curve. this is already given in the law of demand also. अभी clear the price effect. प्राइस इफेक्ट ये कहता है कि जब कभी भी चीजों के दाम बढ़ते हैं तो उसकी डिमांड, जब कभी भी चीजों के दाम कम होते हैं तो उसकी डिमांड क्या होती है, बढ़ने लगती है. तो बढ़ती हुई डिमांड के साथ अगर हम डिमांड कर्व निकालने की कोशिश करें तो हमारी डिमांड कर्व कैसे होगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अग्री? Yes, do you agree everyone? Right. Next point, explanation of the diagram. From the above diagram we can conclude that the demand curve is downward sloping due to inverse relationship between price of the product and its quantity demanded. Are we okay? Now substitution effect. अगला point है substitution effect. How does substitution effect affect the law of demand? यहाँ पे समझने की कोशिश करो. या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट किस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व के लिए एक रीजन है. हिक्स एंड एलन लेट द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट एज वन ऑफ द रैशनल्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. अभी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट जो दो इफेक्ट है, ये दोनों भी हिक्स एंड एलन ने प्रोपाउंड किया एज अ रैशनल और रीजनिंग्स ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड. राइट. अंडर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वी हैव लर्नड दैट द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स आर कांस्टेंट. द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स आर कांस्टेंट. यहां पे हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि सब्स्टिट्यूट का प्राइस क्या है, कांस्टेंट. वेयर देयर इज अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द ओरिजिनल प्रोडक्ट फॉर इट्स सब्स्टिट्यूट डिक्रीज वेयर एज द डिमांड ऑफ द ओरिजिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेस. अब यहां पर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश करो. इफ द प्राइसेस ऑफ टी decreases from 10 to 15, or you can say increases, you can consider either of the way. Let's consider अब यहां पे जो कंसिडरेशन दिया गया है, अब यहां पर जो कंसिडरेशन, एक सेकंड मुझे एक बार एग्जांपल देखने दो. अभी देखो, when the prices of tea are decreasing from 20 to 10, what is happening to the demand of tea? I said, when the price decreases demand increases. टी की डिमांड 10 से कितनी हो गई,
15। कॉफी जो है वो पहले भी 20 रुपए में था, अब भी 20 रुपए में है, सिटेरिस पेरिबस, राइट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, सिटेरिस पेरिबस। कॉफी कितने में है? 20 रुपए में है। तो पहले जो है कॉफी की जो डिमांड थी, वो कॉफी की डिमांड थी 5 kg। कॉफी की डिमांड कितनी थी? 5 kg। अब सब्स्टिट्यूशन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के हिसाब से चाय का दाम 20 रुपए से 10 रुपए हो चुका है। चाय का दाम 20 रुपए से 10 रुपए हो चुका है। अब जब 20 रुपए से 10 रुपए चाय हो जाएगा तो कॉफी मिल रही है 20 रुपए में और चाय मिल रही है 10 रुपए में। एज वी ऑल नो, इसके वजह से क्या होगा, कॉफी जो महंगी है उसे लोग गिव अप करके जो सस्ती चाय हो चुकी है उसकी तरफ टर्न होंगे, बरोबर, जिसकी वजह से कॉफी की डिमांड क्या होगी? कम होगी। लेट्स से अर्लियर देयर वाज 5 kg डिमांड ऑफ कॉफी, नाउ दैट विल रिड्यूस टू 0, दैट विल रिड्यूस टू 0। अग्री? जब प्राइस जो टी का कम होगा, जब प्राइस टी का कम होगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के वजह से जो लोग कॉफी पीते थे अब वो सस्ती चाय को पीने लगेंगे। सो देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ टी फ्रॉम 10 to 15। अग्री? अग्री और नॉट? यस और नो? As the price decreases, demand for tea is increasing because its substitute is costlier in the market. Assumption क्या है? The prices of substitutes are constant. मार्केट में 20 रुपए में चाय मिलती है, 20 रुपए में कॉफी मिलती है। 10 किलो चाय की डिमांड है, 5 किलो कॉफी की डिमांड है। 10 किलो चाय की डिमांड है, 5 किलो कॉफी की डिमांड है, हाँ या ना? यस और नो? लेकिन इसके बाद चाय के दाम कम हो गए 10 रुपए में। As the price decreases, हमने कल देखा था prices of related goods, relationship between price of a commodity and quantity demanded of its substitute. As the price increases, demand for its substitute increases. As the price decreases, demand for its substitute decreases. अब चाय के दाम कम हो गए तो डिमांड किसकी कम होगी? कॉफी की। डिमांड किसकी कम होगी? कॉफी की। लेकिन बेटा टी की डिमांड क्या होगी? टी की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि जो महंगी कॉफी है उसको लोग गिव अप करेंगे, उसके सब्स्टिट्यूट टी की तरफ जाएंगे और टी की डिमांड करने लगेंगे, हाँ या ना? हाँ या ना? सो हमारी टी की डिमांड 10 से क्या हो रही है अब? 15। कॉफी की डिमांड 5 से क्या हो रही है? 0, क्योंकि टी मार्केट में सस्ती मिलने लगी है। तो अब जब हम क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी को एक ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, तो जब पहले प्राइस था 20 रुपए, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी वॉज 10, हाँ या ना? आफ्टर दैट when the price reduced to 10, the quantity demanded of tea increased to 15. When we draw the graph, we get the demand curve. How is the demand curve? Downward sloping. Yes or no? There is increase in the quantity demanded of, there is an increase in the quantity demanded of tea. But why is this increase seen? This increase is seen due to the substitution effect. श्रावणी, डोळे उघड. रात्री लवकर झोपत जा, रोज 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 झोपायची सवय चांगली नाही लेक्चर मध्ये. दिस इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. इसे क्या बोलते हैं हम? इसे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. तब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से 10 किलो टी की डिमांड कितनी हो गई? 15 रुपए, क्योंकि उसके सब्स्टिट्यूट के मुकाबले हमारी टी कम दाम में मिल रही है. इस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के हिसाब से हमारी डिमांड का जो टी की है वो कैसे बन रही है? डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. यहां पे देखो, प्राइस कम हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है. प्राइस कम हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड हमारी बढ़ रही है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट महंगा है, लोग हमारे सब्स्टिट्यूट को छोड़ के हमारी तरफ टी की तरफ आ रहे हैं, लोग कॉफी को गिव अप करके टी की तरफ आ रहे हैं. तो प्राइस कम हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है. कैसा चल रहा है? इनवर्स. इनवर्स की वजह से फिर स्लोप कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग. तो हमारी ओरिजिनल डिमांड कब कैसी है? डाउनवर्ड स्लोपिंग. अभी ओरिजिनल डिमांड कब डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों आ रही है टी की? ड्यू टू द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ कॉफी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया कैसे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से डिमांड कब डाउनवर्ड स्लोपिंग हुई? हाँ या ना? हाँ या ना? अब बात करते हैं इनकम इफेक्ट की. अब हम बात करेंगे इनकम इफेक्ट की. इनकम इफेक्ट क्या बोलने की कोशिश करता है? Under the income effect, a rationale of the law, we need to consider the income of consumer to be fixed or constant. अब इनकम इफेक्ट को समझते वक्त एज ए रैशनल हमें यह समझना है और हमें यह अज्यूम करना है कि द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट.
दोनों भी इसके अंदर। पहले वाले सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में हमने क्या अज्यूम किया कि द प्राइजेस ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स आर कांस्टेंट। कॉफी का दाम पहले भी 20 था, अभी भी 20 है, तब जाके टी के दाम में जो बदलाव हुआ उसके वजह से टी की डिमांड बदल रही है, राइट, जिसके वजह से डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग आ रहा है। अब उसी तरह से इनकम इफेक्ट पढ़ना है तो सबसे पहले हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो इनकम है वो कांस्टेंट है। जो इनकम है वो क्या है? कांस्टेंट। हाँ या ना? इनकम इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट इनकम अगर कंज्यूमर की होती है तो हाउ विल बी द डिमांड कर्व एंड व्हाट विल बी द इंपैक्ट, व्हाट काइंड ऑफ स्लोप विल हैव टू सी। तो पहला अजम्पशन इनकम इफेक्ट में क्या है? द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज कांस्टेंट। आर वी ओके? राइट। As the price of the product decreases, the purchasing power of the consumer increases, which implies that consumer will be able to purchase more quantities of the commodity as with the given income. समझ में आ रहा है क्या टेक्स्ट को पढ़कर? क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? As the price of the product decreases, the consumer will be able to purchase मोर क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। बहुत इजी है समझने के लिए। देखो, इनकम ऑफ गौरी हु इज अ सैलरीड एम्प्लॉय, इनकम ऑफ गौरी हु इज अ सैलरीड एम्प्लॉय, इनकम ऑफ गौरी हु इज अ सैलरीड एम्प्लॉय